Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Evening. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I'm sharing one sheet with you. Okay, let's do it. Okay, it's open for all. ठीक है, सभी आंसर कर सकते हैं. In next, one by one you will answer. Go, wake up, have. According to this picture, देखो ये, ठीक है, picture है, and these three options are there. You have to tell me one fill up. Ma'am, wake. Ma'am, wake. Wake up. Wake up. Here. Ma'am, wash. Ma'am, wash. Ma'am, wash. Ma'am, wash. In this. Ma'am, brush. Brush. Here. Ma'am, brush. Get. Get. Ma'am, get. Ma'am, get. Here. Get. Go. Have. Go. Ma'am, go. Go. Ma'am, go. Go. Okay, आपका ठीक लग रहा है? Go shopping. Have. Ma'am, have. Ma'am, have shop. Have. We'll complete it afterwards. In this. Ma'am, get. Ma'am, have lunch. Do lunch. Listen, get lunch, do lunch, have lunch. Ma'am, get. Do lunch. Ma'am, have lunch. Ma'am, do. Ma'am, do lunch. Ma'am, have. अच्छा, get आ सकता है, get possible or not? ये क्रॉस कर दूं. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्रॉस करते हैं. Do lunch or have lunch? Ma'am, do lunch. Ma'am, have lunch. Ma'am, have lunch. Okay, जो do बोल रहे हैं, tell me why do. Yes, beta. Tell me reason for your answer. देखो, do तो करना होता है ना. अगर इसकी मदर यहाँ पे है and she is saying do lunch, then it's correct. But have lunch, ठीक है. Have means to offer कर रहा है, ठीक है. ये tray देखो, check out the picture. उसके पास tray है and he is serving to other, किसी और को दे रहा था. Have lunch. Okay. Now dash home. Ma'am, go home. Go home. Okay. Now see, all of you participate, ठीक है. Please अपने answers match करो. तो भी आपके answers हैं. Ma'am, meet friends. Ma'am, meet friends. Ma'am, meet friends. Ma'am, meet friends. Now Ma'am, go to. Ma'am, go to the playground. Ma'am, go to the playground. go to the playground. Next. Go to the playground. Ma'am, Ma'am, do have breakfast. breakfast. Ma'am, do. Ma'am, My cursor is there, so it's not do. ठीक है. Answer, अपना answer दो. Ma'am, Have a breakfast. Do breakfast. Ma'am, do breakfast. Ma'am, do Now breakfast. here. Ma'am, do breakfast. Ma'am, fly. Ma'am, fly. Okay. Fly. Last day we did two types of noun. Verb. Finite and non-finite. ये finite के part है, ठीक है. आपको जो वो diagram किया है ना, types of verbs, finite and non-finite, वो अच्छे से diagram clear होना चाहिए, ठीक है. देखो, finite के 3 parts हैं: action verb, helping verb and linking verb.
इसमें अब एक्शन वर्ब हमें देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्शन तो हमें पता चल जाता है, रनिंग, जंपिंग, स्विम, ठीक है, ईट, शॉपिंग। ठीक है, हाँ, इन वर्ड से हमें क्लियरली वी कैन आइडेंटिफाई एक्शन क्या हो रहा है। सो हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, और मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन मींस समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, समथिंग दैट इज वर्किंग इन आवर माइंड। अब अगर माइंड में वर्क होना और फील करना, आपको फील याद है किस चीज में हमने किया था? थिंग्स विच वी कैन फील आर abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा? इन दोनों में कंफ्यूजन होगा ना? ठीक है, तो अब आप जब मेंटल एक्शन वाले वर्ड्स देखेंगे तो जस्ट मेक इट श्योर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। वन थिंग यू कैन डू है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सफिक्स आपको अभी याद है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉट सभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछों को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि अगर माइंड में कुछ काम हो रहा है या फिर फील कर रहे हैं तो वो हम what we are doing, we are working something is going on or something we are feeling। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन देम। हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब को हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में। कुछ वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। सेम हियर वी आर गिवन इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, बी वाली फॉर्म्स भी। तो ये क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन हमें क्रिएट करेंगे। टुडे वी विल डू identification of action and helping verb. It's quite easy to understand it. Tomorrow we will complete helping verb and linking verb. इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, how they are different in their working। ठीक है, एक्शन वर्ब दो होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। प्लीज कीप दिस मेंटल एक्शन इन योर माइंड, नहीं तो आप इसको क्या मार्क करके आओगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके Okay, ma'am. लास्ट डे वी डिड वर्ब सफिक्स किया था हमने। यस और नो? No, ma'am. Ma'am, yes. Okay, let me open the Yes. again for you. Just 1 minute. Okay, here we go. देखो इसमें भी आपको what you need to take care. You remember this thing? जैसे think word है, think, sorry, it's K. Think क्या है? It's a verb. All right. देखो beauty, beautify, beautiful, beautifully, सब में beauty लग रहा है। अब आपको यहाँ पे confusion होगा। Clear? Yes, ma'am. वर्ब भी सेम लगती है, नाउन भी सेम लगती है, एडजेक्टिव भी लगती है और एडवर्ब भी लगती है। एडवर्ब का तो सिंपल फंडा है, एलवाई वाले सभी वर्ड्स है ना एडवर्ब होते हैं, जिनके पीछे एलवाई लगता है वो सभी वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, दैट्स इट। TION वाले वर्ड, एंस, इंस, ठीक है, और टिव, फुल, एबल, नल, ठीक है, ये सभी वर्ड्स इसमें एडजेक्टिव में लगते हैं। तो आपको यहाँ पे सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्राई टू लर्न दिस सफिक्स, ओके। फिर जो हम बोल रहे हैं ना वर्ब में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, देखो ब्यूटी एंड ब्यूटीफाई, कंपटीशन एंड compete, क्रिएशन एंड क्रिएट, मैनेजमेंट एंड मैनेज। ठीक है, वर्ड्स बहुत सिमिलर लग रहा, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सो दे विल, सो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके सफिक्स से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, function of that word, how that word is functioning in a sentence।
Just let me share that sheet once again with you. 1 minute. So here action verb, देखो verb phases भी होते हैं, verb phases we will discuss later on, but here in short देखो, the boy ran, the boy will run, the boy will be running, the boy must have been running. ठीक है, ran, run, running, running क्या है, मेन वर्ब है, और ये will be, must have been, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, अब वन मोर थिंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद आता है मेन वर्ब. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा. यू विल अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एक्टिविटी. Maximum you will practice, maximum perfection you will get. देखो, in here in this question, in action verb is a word which shows something is doing. ठीक है, circle the action verb in each sentence. Raise your hands up. All of you raise your hands, beta. What about Jeet, Panchika, Simran? You don't want to participate? Now Garima will answer me first, second, and third. Tell me which words are action verb. Garima, answer beta. Garima, your hand is up, but you are not answering. Garima. Okay, Jeet. First, second, third answer. मैम फर्स्ट का लिसन्स एंड मैम सेकंड का होगा हिट्स. Ruhani. Yes, Third and fourth. ma'am. Grunt. मैम ग्रंट्स क्या आते हैं? ग्रंट जो पिक शोर करता है ना, आवाज निकालता है, दैट ग्रंट. ओके मैम. सिमरन, फिफ्थ वन. Yes, beta, answer. We are supposed to do 4 exercise. Hurry up. Okay, Garima. Not there. Yashdeep, 5th and 6th. मैम पेटीएम. 5th and 6th, beta. मैम फिफ्थ And 6th. मैम ओके. मैम फिफ्थ का हंटर, सिक्स्थ का डॉक्टर गोल्ड. क्या बताना है आपको? Yashdeep, read this question.
Read this question. Circle the action word. Answer fifth. Circle the action words. Now tell me answer. Dear, Sixth one. Yes, beta. ma'am, examines. Examines. Examine क्या होता है? What do you mean by examine? मैम नहीं पता. तो फिर आपने एक्शन वर्ब कैसे बताया इसको? यशदीप फिफ्थ में बताओ. फिफ्थ में गलत है. यस यशदीप, ये टेल मी एक्शन वर्ब क्या होता है बेटा? यशदीप मैम मैंने क्लास ले. यस मैम एक्चुअली मैंने क्लास लेट लगाई थी. मैम मैं ट्यूशन पे थी. कोई बात नहीं. लिसन, कोई बात नहीं, नो इशू, घबराओ मत. देखो सोच के बताओ एक्शन वर्ब क्या होता है जिससे हमें काम करने का पता चलता है. ठीक है, एक्शन होने का पता चलता है. ओके, अब बताओ इस सेंटेंस में एक्शन कहाँ हो रहा है? आपको किस वर्ड से पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है? फिफ्थ में द हंटर सर्चेस फॉर अ डियर. तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? क्या काम हो रहा है? वर्ब क्या है यहाँ पे? मैम सर्चेस. यस देखो, डियर नहीं है. डियर तो क्या है बेटा? नाउन है. और देखो द और आर्टिकल लगा हुआ है. ठीक है, तो आर्टिकल किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है. आपको तो ये नाउन बोलना ही नहीं चाहिए कि ये एक्शन वर्ब है. ओके, देखो हंटर कौन होगा? कोई पर्सन होगा ना. हंटर कौन है? कोई इंसान है जिसको हम हंटर बोल रहे हैं, मतलब उसका शिकारी है. ठीक है, तो वो क्या है? पर्सन है ना. द हंटर ढूंढ रहा है फॉर अ डियर, फॉर preposition. ठीक है, और डियर एक हिरन को ढूंढ रहा है. तो क्या वो काम क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है. तो सर्च इज यहाँ पे एक्शन वर्ब है. ठीक है, डॉक्टर गोल्ड इज द नेम. ठीक है, ये डॉक्टर क्या है? उसका टाइटल है. इनिशियल्स. एग्जामिन्स हिज पेशेंट, उसके पेशेंट को एग्जामिन करता है, मतलब उनका जांच करता है. तो एग्जामिन यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब है. क्लियर? ओके मैम. यशदीप, बाकी के भी आंसर्स आप अपने ढूंढ के रखो और जब हम डिस्कस करेंगे तो ट्राई टू मैच इट कि आपका ठीक है या नहीं है. ठीक है, अभी ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ रमनजोत को 7th and 8th. मैम थिंग्स. Yes, things. Next 8th मैम one. डैश. मैम डैश. Yes, dashes. Now मैम डैशेस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैशेस? coming out. Coming out, appearance, दिखाई देना. ठीक है, लॉकर रूम पता क्या होता है? लॉकर रूम होता है जहां पे वो अपने ड्रेसेस वगैरह चेंज करते हैं. दैट इज लॉकर रूम. द फुटबॉल टीम डैशेस आउट ऑफ द लॉकर रूम. लॉकर रूम से बाहर आ रहे हैं. दे कमिंग आउट, हमें वो दिखाई दे रहे बाहर आते हुए. ठीक है, यस. 8th 9th. ओके, यू आर डन. नाउ रूहानी. रूहानी 9th and 10th. 9th and 10th. Yes. 9th में read और 10th में buys. Okay, by here reads. Ruhani, tell me why they have written this in capital. ये क्या चीज है? क्या है ये? Can you help me? मैम इसका नेम है. Yes, बेटा. मैम because this is the name of a book मैम. No, no, no. ये book का नाम. Not others. कौन है ये? मैम ये बुक का नेम है. Yes, it's a name of a book. तो ये कौन सा नाउन है? Proper, common, collective, material और abstract? Yes, it's a proper noun. देखो, वन रूल. ऑफ को क्यों नहीं कैपिटल किया? ऑफ तो छोड़ दिया उन्होंने. Why off is not written in capital? Because there is a rule. अगर प्रॉपर नाउन है वो वन वर्ड भी हो सकता है. दैट कैन हैव मोर देन 2 or 3 वर्ड्स और मोर देन दैट. ठीक है,
वन वर्ड का भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हो और उसके बीच में प्रेपोजिशन आ जाती है, ठीक है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, तो उसको हम कैपिटल नहीं करते। प्रेपोजिशन वाले वर्ड जो आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं हम उनको कैपिटल नहीं करते। ओके, दैट्स व्हाई ये ऑफ यहाँ पे कैपिटल नहीं है। ऑल राइट, ओके बेटा, आप इसको फर्दर भी चेक कर सकते हो। ऑफ आपको कहीं पे भी ऑफ हो गया, ऑन हो गया, कभी कभी ये प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, तो यू वोंट राइट इट इन कैपिटल, बाकी सब आप कैपिटल में करेंगे। ओके, 10th 11th एंड 12th, मीनाक्षी यस मैम। आंसर बेटा। मैम 10th का बायज, 11th का सोल्व्स एंड 12th का फाइंड्स। गुड, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। आंसर मैं नाम लूंगी एंड ट्राई टू आंसर इट वेरी फास्ट। यस अर्श, 13 14 एंड 15, टेल whether each word in each word is an action verb or noun। आपको बताना है ये एक्शन वर्ब है या नाउन है। मैम फर्स्ट है मैम एक्शन वर्ब। मैम सेकंड भी एक्शन वर्ब है मैम। थर्ड मैम थर्ड भी एक्शन वर्ब है। ओके परफेक्ट। जिनके चांस आ गए ना, पुट योर हैंड्स डाउन। चिराग 16 17 18। मैम 16th नाउन है। टूथ मैम 18th एक्शन वर्ब है। ओके, टूथ टूथ क्या होता है। मैम टी। यस, तो टीथ क्या होता है। वर्ब हो सकती है टीथ, या नाउन हो सकता है। मैम नाउन। अच्छा, टूथ क्या है, वन टीथ और मोर देन वन टीथ। मैम मोर देन वन टीथ। नो, टूथ टीथ। नो मैम, एक सिंगल टीथ। टूथ टीथ, डबल ई वाला ज्यादा टीथ, ओ वाले सिंगल टीथ। ओके, नाउ 18th 19th एंड 20th, जिनके चांस आ गए हैं पुट योर हैंड डाउन। अश्वीर, अर्शवीर। मैम 19। यस 18th मैम बेटा। 19th एक्शन वर्ब। ओके, 18th मैम एक्शन वर्ब। मैम 20th नाउन। यस नाउ। नाउ निशांत 21st 3। मैम 21st एक्शन वर्ब। 22 भी एक्शन वर्ब। 23 नाउन। ओके, अच्छा एक चीज है ना, देखो आईएनजी वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी हटा देंगे तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें हम एस और ईएस भी ऐड करते हैं ना, एस और ईएस भी ऐड करते हैं। एस और ईएस हम नाउन के प्लूरल बनाने में भी ऐड करते हैं, तो ये कंफ्यूजन मत करना कि जैसे रिलैक्सेस है कि ईएस है तो हम इसका अब नाउन प्लूरल है या फिर नाउन वर्ब है। क्लियर, जैसे राइट्स है, राइट्स, ये क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है। अब इसको आप कभी ये सोचो कि एस लगा के प्लूरल कर दिया है इसको। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। यस मैम। ठीक है, एस और ईएस नाउन में भी लगती है, जब हम नाउन का प्लूरल करते हैं तब भी हम एस और ईएस लगा के करते हैं, और एक हम वर्ब में भी एस और ईएस लगाते हैं। 5 फॉर्म में से आपने पढ़ा था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक थी आईएनजी और एक थी एस और ईएस। ईएस में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अनन्या
24, 25, 26 जल्दी करो बेटा। मैम 24 एक्शन वर्ब, हाँ बता देना यार वो मैम 25th एक्शन वर्ब, हम्म, 26th नाउन। ओके, किसी ने भी मुझे नहीं बोला 24 गलत है। मैम 24 नाउन है मैम, ये कॉमन नाउन है। यस, गेम, देखो गेम है, ठीक है? गेम को खेलना क्या है? खेलना वो वर्ब है, मैम और प्ले, गेम क्या है? मैम प्ले। यस, गेम क्या है? ये गेम game नाउन है। ओके, अब अगर हम कंफ्यूजन होती है तो गेम का हम कोई नाम रख सकते हैं ना, ठीक है? जैसे आपका पबजी है, आपने गेम का नाम रख दिया, तो गेम ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। देखो अब इस तरीके से भी राइट का आप नाम लिख सकते हो, राइटर का नाम लिख सकते हो, राइट का कोई नाम नहीं होता, तो ये क्या है? वर्ब है। ओके, आपको अपने खुद की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी ऐसे। क्लियर? ओके, दिस क्वेश्चन, जिनका चांस नहीं आया ओनली दे विल रेज देयर हैंड। धर्मेंद्र 27 का बताओ। राइट अ सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होना चाहिए वर्ड में, मींस जिससे हमें काम का पता चलता है। टू डिस्क्राइब द पिक्चर, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अंडरलाइन द एक्शन वर्ब। यस, क्या सेंटेंस मैम बनाओगे? ही हम्म, मैम ही इज ईटिंग केक। ही ईट्स केक, पूरा केक और पीस ऑफ केक, मैम पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, ठीक है? पूरा केक तो उसके पास है भी नहीं। ओके, 28 तरनजीत कौर 28। ओके मैम। मैम शी ईट्स बुक्स विद हर चाइल्ड। यस, विद हर चाइल्ड, और वो अपने बच्चे के लिए बुक पढ़ रही है। देन व्हाट सेंटेंस यू विल क्रिएट? बच्चे के साथ पढ़ रही है। ओके, बच्चे के लिए पढ़ रही है। मैम शी रीड मैम बुक फॉर हिज चाइल्ड। टू हर चाइल्ड, ठीक है? टू हर बेबी। नाउ 29 ईशांत 29। she is opening gift. यस, शी इज ओपनिंग गिफ्ट। अच्छा, अगर ये गिफ्ट पैक कर रही है देन? She is packing gift. ओके, इस सेंटेंस में पैक कर रही है, रैप कर रही है? पैक और रैप में क्या डिफरेंस होता है? टॉफी होती है, आपकी कैंडीज होती हैं, उसके ऊपर जो एक पॉलिथीन आती है छोटी सी, उसमें वो लिपटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैम रैप, रैपर। Unwrap. कोई चीज किसी में लिपटी होती है ना, तो उसको रैप बोलते हैं। और पैक होता है जैसे आप अपना सामान पैक कर रहे हो तो उसमें डाल रहे होते हो, ठीक है? बांध रहे होते हो। तो शी इज ओपनिंग और शी इज रैपिंग इट। ओके, Okay, ma'am. okay, here one more exercise is there. These are your answers. Okay, let me share another sheet with you, just 1 minute. अच्छा, इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? वी आर लेफ्ट विद 8 or 7 minutes only, 6 minutes. Let's do one thing. ये सभी के लिए ओपन है। You didn't got the chance. Aksharam, answer me. Read this question and tell me answer for first, second, third. In each sentence, underline the main verb twice and helping verb once. देखो, ये आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का शीट है, ठीक है? इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हमारा प्रॉब्लम है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, क्योंकि दोनों में सेम वर्ड्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी सेम वर्ड है और लिंकिंग वर्ब में भी, तो वो किस टाइम लिंकिंग वर्ब होगा या किस टाइम, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे। इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। वी रेड वन थिंग कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है? जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये याद रखा करो। मेन वर्ब से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर ये आपको लिख के दिया है कभी सेंटेंस में, देन दैट इज रॉन्ग। ऑलराइट, तो नाउ टेल मी आंसर फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मेन वर्ब को 2 बार अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब को 1 बार अंडरलाइन करना है। यस, मैम एम को 2 बारी करना है।
क्यों? और स्टडीइंग को एक बार। अच्छा चलो ठीक है। नोबडी विल मैम Okay. wrong. 1 minute. Nobody wrong. will. No, Ashri. Ma'am, No. ma'am, No. No. Yes. Next answer, beta. मैम मैम राइट को 2 बार करना है और विल को 1 बार। Okay. Third one. मैम हैव को 1 बार करना है और रीड को 2 बार। अच्छा ये बताओ मुझे, ये एम आपने मुझे 2 बार मैम पहले में एम को 1 बार और स्टडी को 2 बार। हाँ सुनो, आपने मुझे एम को 2 बार क्यों करवाया? ये कैसे मेन वर्ब है? मेन वर्ब से हमें डायरेक्ट काम का पता चल जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। ओके, जो ये है, थे, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, इनको कंप्लीट करने के लिए, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये लगते हैं। तो ये बताओ, एम हेल्पिंग वर्ब है या स्टडिंग हेल्पिंग वर्ब है? स्टडी से मुझे काम का पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है? मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब। जो भी आपने एक्शन वर्ब किए है ना, वही तो मेन वर्ब होते हैं बेटा। इन्हीं को प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। 2-3 नाम थे ना जो हमने कल स्टडी किए थे, आपको ये क्लियर होना चाहिए। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडिंग क्या है? मेन वर्ब है। ओके बेटा, मैम ओके। ठीक है। अभी जो बाकी के आंसर्स डिस्कस करेंगे ना, अपने आंसर्स उसके साथ मैच करना। अर्श, 4th, 5th एंड 6th। मैम इसको मैम इसको 1 और 2 करना है। की बार। यस। मैम इसको 2 बार करना है, और मैम पेंटिंग को 1 बार करना है। ओके, 5th वन। मैम आर को 2 बार करना है, वर्किंग को 1 बार करना है। 6th वन। मैम हेड को मैम 2 बार करना है, ओवरकम को मैम 1 बार करना है। अब 2 बार वाला क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मैम इसने 2 बार गलती करना है मैम मेन वर्ब। अर्श, वेयर आर यू बेटा? अभी मैंने जस्ट क्या बोला है? मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब, जिससे हमें काम का पता चलता है। आपको यहाँ पे इससे क्या काम पता चल रहा है? पेंटिंग से तो मुझे पता चल रहा है वो पेंट कर रहा है, ठीक है। इज एम आर क्या? हेल्पिंग वर्ब था, और मैम पेंटिंग मेन वर्ब था। इज एम आर क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मैम होते हैं, लिंकिंग वर्ब होती है। ओके, और ओके मैम। जिससे हमें काम पता चलता है, जो कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि ये वर्ब है, तो वो कौन सा होता है? एक्शन वर्ब होती है। ऑलराइट, ओके ओके मैम। ठीक है। आई विल शेयर द शीट विद यू। आई विल शेयर द शीट विद यू, ठीक है। इसमें आपके आंसर्स भी हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टाइम, जस्ट 1 मिनट। हर्षदीप, 7th, 8th, 9th आंसर बेटा। 6th, 7th, 8th। यस हर्षदीप, बच्चे से टाइम यस मैम। जल्दी आंसर किया करो। 6th का आंसर मैम बताओ। मुझे मैम ये टॉप मैम मुझे ये टॉपिक मैम कम समझ लगा है। आपने से पहले वर्ब की क्लासेस की है? मैम थोड़ी सी मैम, मैंने कहीं लगाई नहीं मैम क्लासेस। आपने अभी थोड़ी ज्वाइन किया, तो पहले से ज्वाइन किया हुआ है ना? मैम यस। तो बेटा लिंक तो आपको ग्रुप में मिलते हैं, आप लिंक क्यों नहीं चेक करते? मैम भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, ये भूलने की कोई चीज नहीं है। अभी आपने 6, 7, 8 में पढ़ लिया ना, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट इस टाइम पे क्लियर करने बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड, हैज, हैव, और जिससे हमें काम का पता चलता है वो होती है मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है। चलो अब बताओ 7th, 8th, 9th। यस। मैम एक्शन वर्ड्स में हम्म
आपको her mother had given her a great deal of support. आपको इसमें क्या पता चल रहा है? वर्ब बताओ मुझे, वर्ब कौन सी है? मैम support. ओके, ऑल ऑफ यू रीजॉइन, ठीक है, फॉर 5 minutes. ये कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज, एंड वन मोर एक्सरसाइज इज देयर. ऑल ऑफ यू रीजॉइन. मैं क्लास खत्म कर रही हूँ. ऑलराइट? ओके मैम.